নমস্কাৰ মই অতুল ভূঞাই সমূহ দৰ্শকক অকথ্যলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ দিনটো সংসদীয় ৰাজনীতিত এক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা দিন ৰূপে পৰিগণিত হৈছে কিয়নো আজিৰ দিনটোত এজন সাধাৰণ মানুহ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে মনোনীত হৈছে। দিল্লীৰ শাসনভাৰ দখল কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতৃত্বত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। কোনো সপোনতো ভবা নাছিল যে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এটা বছৰ আগতে গঠন হোৱা এটা ৰাজনৈতিক দলৰ মুৰব্বী হৈ আজি দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব। বিজেপি কংগ্ৰেছ সকলোকে পৰাভূত কৰি আজি আম আদমি পাৰ্টিৰ এখন চৰকাৰ হ'ব। আজি আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰ গঠন হ'ল। চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ লগে লগে বহু নতুন সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰা হ'ল যে আজিৰ পৰা 28 বছৰ পূৰ্বে যিদৰে অসম গণ পৰিষদে নেহেৰু ষ্টেডিয়ামৰ মুকলি আকাশৰ তলত জনতাৰ মাজত শপত লৈছিল সেই একেদৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ নেতৃত্বত মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে আজি ৰামলীলা মৈদানৰ মুকলি আকাশৰ তলত শপত ল'লে। কেৱল শপত লোৱাই নহয়, শপত লোৱাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈ তেওঁ ঘোষণা কৰিলে যে এতিয়াৰ পৰা মন্ত্ৰীসভাৰ কোনো সদস্যৰ গাড়ীত ৰঙালাইটযুক্ত ৰঙালাইট নাথাকিব, কোনো বিষয়াৰ গাড়ীত ৰঙালাইট নাথাকিব আৰু তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগত কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী নাথাকিব। আৰু অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী চৰকাৰী কোৱাৰ্টাৰ থকাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ থাকিব নিজৰ ফ্লেটত। যে প্ৰশ্ন হয় যে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে যি সিদ্ধান্ত লৈছে সেয়া আচলতে চমক নে কাৰ্যত ই সংসদীয় ৰাজনীতিত পৰিৱৰ্তন আনিব। আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে গোটেই দুৰ্নীতিমুক্ত কৰিবলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে যি কচৰৎ চলাইছে সেই কচৰৎ সঁচাকৈ সফল হ'বনে? পুনৰ কৈছোঁ যে আজিৰ দিনটো সংসদীয় ৰাজনীতিৰ বাবে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ঘটনা। এই বিষয়বস্তুৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম, কিন্তু যিসকল দৰ্শকে আজিৰ দিনটো সমগ্ৰ দৃশ্য ভালকৈ চোৱা নাছিল তেখেতসকলৰ সুবিধাৰ্থে আমি প্ৰস্তুত কৰিছোঁ অকথ্যৰ বাবে এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। 25টা কেমেৰা, এটা দুটা নহয় মুঠ 25টা কেমেৰাত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সমগ্ৰ গতিবিধি আজি আমি বন্দী কৰিছিলোঁ। এইবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ 25টা কেমেৰাত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ফ্লেটত পুৱাই আহি উপস্থিত হৈ তেওঁৰ ভণ্টি। ভনীয়েকে আশা প্ৰকাশ কৰে দিল্লীৰ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব পাৰিব কেজৰিৱাল। পুৱাৰে পৰা ৰামলীলা মৈদানত বৃহৎ সংখ্যক লোকৰ সমাৱেশ ঘটিছিল। ৰামলীলা মৈদানত নাছিল ভিআইপিৰ বাবে কোনো পৃথক আসনৰ ব্যৱস্থা। পুৱাৰ ভাগতেই নিজৰ ফ্লেটৰ পৰা শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ বুলি ওলাই আহে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। देखिए ये पूरी लड़ाई अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने की नहीं है। ये एक शुरुआत है, आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। जब तक इस देश को भ्रष्टाचार से, भुखमरी से, अन्याय से मुक्ति नहीं मिल जाती ये लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन आज एक ऐतिहासिक दिन है। ইতিমধ্যে মেট্ৰো ৰেল ষ্টেচনত বৃহৎ সংখ্যক সমৰ্থকৰ আগমন ঘটিছিল। আগমন ঘটিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক চাবলৈ শ শ লোক। মেট্ৰো ষ্টেচনত দিল্লীৰ ভাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছিল নিৰাপত্তা বাহিনী। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অথবা মন্ত্ৰীসভাত অংশ ল'ব বিচৰা নেতাসকলে মেট্ৰো ৰেলত অহাৰ বিপৰীতে একাংশ নেতা তথা তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্য গাড়ীত অহা দেখা গৈছিল। ইতিমধ্যে ৰামলীলা মৈদানত শ শ লোকৰ আগমন ঘটিছিল। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ শপত গ্ৰহণৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিল অনুগামীসকলে। মেট্ৰোৰ পৰা এখন ৱাগেনাৰত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ ৰাওনা হয় অৰবিন্দ কেজৰিৱাল। ৰামলীলা মৈদানত উপস্থিত হ'ল অৰবিন্দ কেজৰিৱাল।
অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ৰাজ্যপালৰ উপস্থিতিত শপত গ্ৰহণ কৰে। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। इनकलाब! मेरी एक छोटा सा विनती है, ये सामने के साथी थोड़ा सा ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं तो इसको बाउंड्री को मत तोड़िए प्लीज, पुलिस को परेशानी हो रही है। इस बैरिकेडिंग को मत तोड़िए, पुलिस को बहुत परेशानी हो रही है। ये आम आदमी की सभा है, हमें पूरे अनुशासन के साथ बर्ताव करना है। हमें लगता था इस देश का कुछ नहीं हो सकता, ये देश तो बिल्कुल गर्त में जा रहा है। इस देश की राजनीति ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस बार दिल्ली विधानसभा के चुनाव में दिल्ली के लोगों ने दिखा दिया कि ईमानदारी से भी राजनीति की जा सकती है, ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते जा सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास सारी समस्याओं का समाधान नहीं है, भगवान ने सारी बुद्धि हमें नहीं दी है। हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज सरकार बनेगी और कल सारी समस्याओं के समाधान हो जाएगा। लेकिन हमें यह पूरा यकीन है कि अगर दिल्ली के 1.5 करोड़ लोग इकट्ठे हो गए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान हम लोग मिलकर नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों, अब हम लोगों को दिल्ली एक साथ मिलकर चलानी पड़ेगी। अब सरकार ये 7 मंत्री नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ अफसर नहीं चलाएंगे, सरकार कुछ पुलिस वाले नहीं चलाएंगे। अब हम ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे दिल्ली के अंदर कि 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार बनाएंगे और 1.5 करोड़ लोग मिलकर सरकार चलाएंगे। अन्ना जी कई बार मुझे कहते थे कि राजनीति कीचड़ है, गंदे हो जाएंगे, लेकिन मैं अन्ना जी को समझाया करता था कि अन्ना जी अगर ये राजनीति कीचड़ है तो अब इस कीचड़ के अंदर खुद ही घुसना पड़ेगा और उस कीचड़ को खुद ही सफाई करनी पड़ेगी। मैं केवल अपने मंत्रीगण से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायकों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे मन में घमंड आ जाए। कभी हमारे मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। ये मंत्री पद का अगर घमंड आ गया, विधायकी का घमंड आ गया, तो दोस्तों फिर उस दिन हमारा ये सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। अब हम सब लोगों को मिलकर दिल्ली को बदलना है, लेकिन आज हम एक कसम खा के जाएंगे यहाँ से, और वो कसम मैं खिलाऊंगा अब सब लोगों को। हम ये कसम खाएंगे कि हम जिंदगी में कभी रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे। लेकिन उसके पहले अभी अपना कोई काम नहीं हुआ करता था बिना रिश्वत दिए। सरकारी दफ्तर में राशन कार्ड बनवाने जाते थे, कोई भी काम करवाने जाते थे, हमसे पैसे मांगते थे और पैसे नहीं दो तो धक्के खाने पड़ते थे। लेकिन आज मैं यहाँ से ऐलान कर रहा हूँ कि अब अगर किसी दफ्तर में जाओ और अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो मना मत करना, उससे सेटिंग कर लेना। हम आपको एक फोन नंबर देंगे, 2 दिन के अंदर फोन नंबर ऐलान कर देंगे, आप तुरंत फोन नंबर पे बता देना और हम सभी रिश्वत लेने वालों को रंगे हाथों पकड़वाएंगे। कोई रिश्वत मांगे, रिश्वत देने से मना मत करना, उसको पकड़वा देना रंगे हाथों। और आपका काम करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपका काम मैं करवाऊंगा, आप उसको रंगे हाथों पकड़वाना और आपका काम मैं करवाऊंगा। मुख्यमंत्री दायित्व लोৱাৰ পিছত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ৰাওনা হয় ৰাজঘাটলৈ। ৰাজঘাটত মহাত্মা গান্ধীৰ সমাধিত ফুল ছটিয়াই সেৱা কৰে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी लड़ाई लड़ा था, आज वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। मेरी सेहत पे कोई असर नहीं हुआ। मैं अभी भी बिल्कुल आम आदमी हूँ और जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बहुत ही मामूली आदमी हूँ, बहुत ही छोटा आदमी हूँ।
मेरी कोई औकात नहीं है। ये दिल्ली की जनता की जीत है और ये भगवान की कोई ना कोई कृपा है, कोई ना कोई कुदरत का करिश्मा है कि इस देश में अब भ्रष्टाचार से मुक्ति की एक आशा दिखाई दे रही है। तो मैं भगवान से निवेदन करूंगा कि वो हमें साहस दे और हमें दिशा देते रहें, और दिल्ली की जनता से अपील करूंगा कि हम सब लोगों को मिलके जैसे आज तक हम लड़ाई लड़ते रहे वैसे ही लड़ाई लड़ते रहना। आज आपके पास कुछ विधायक हैं, कई सारे आम आदमी जो आपके तरह के आम आदमी वो मंत्री भी बन चुके हैं, आपने उन्हें मैसेज भी दिया कि कहीं से अहंकार ना आए, नम्र बने रहे, विनम्र बने रहे। मैसेज देश से नहीं पूरे दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं अरविंद केजरीवाल को। आज मेरे को मत बधाई, मैं जनता को बधाई। जनता ने जो कुछ किया वो जनता ने किया है, और दिल्ली की जनता ने पूरे देश को एक दिशा दी है कि राजनीति ईमानदारी से भी हो सकती है। ये तो हम लोग तो सारी उम्मीद खो चुके थे। मुख्यमंत्री চেম্বাৰত प्रवेश কৰা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে मुख्यमंत्री হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি আসনত বহে কেজৰিৱালে। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল দেশৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে পৰিগণিত হয় যি নিজে আহি মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলৰ দপ্তৰ ঘোষণা কৰে। ইপিনে বাবা ৰামদেৱে কেজৰিৱালে ইতিমধ্যে 3টা ভুল কৰিছে বুলি অভিযোগ কৰে। पहले उनसे 3 भूलें हुई हैं, वो दोबारा आगे से कोई नई भूल ना करें, क्योंकि 3 भूल तक तो फिर भी लोग अच्छा तो नहीं मानते लेकिन माफ कर देते। हिंदुस्तान के लोगों का दिल बहुत बड़ा। एक भूल उन्होंने ये की कि मेरे बच्चों की कसम, मैं ना किसी को समर्थन दूंगा न लूंगा, लेकिन अपने इंटरनल लोगों के जो पहली बार राजनीति में आए थे उनको लगा कि हम शपथ भी नहीं ले पाएंगे तो भूतपूर्व हम विधायक भी नहीं कहला पाएंगे। उनके दबाव में उनको सरकार बनाना पड़ा। पॉलिटिकल मजबूरियां क्या होती है ये उनको पहले ही दिन एहसास हो गया, इसलिए न चाहते हुए भी सरकार बनाना पड़ा उनको। दूसरा, सरकार बनाना था तो दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी के सहयोग से नहीं बनाना था। कम से कम जब उनको हर्षवर्धन ने कह दिया था कि आप यदि हमसे समर्थन चाहेंगे तो हम समर्थन देने के बारे में जरूर सोचेंगे, तो कम से कम बीजेपी का टॉप लीडरशिप करप्ट नहीं है, ऐसी पार्टी का समर्थन लेकर के सरकार बनाते तो उनकी प्रामाणिकता ज्यादा होती। तीसरी बात, आज ने अन्ना हजारे जी को जिस तरह से उनके साथियों ने टारगेट करके कौरव, भीष्म, द्रोण आदि बोला, तो उससे भारत में एक तहजीब होती है बड़ों के साथ बात करने की, उनको रेस्पेक्ट देने की। तो इन 3 गलतियों के आगे वो गलती ना करें तो वो ज्यादा लोगों का विश्वास जीत पाएंगे और एक लंबे समय तक राजनीति में अपनी जगह पर। कितने दिन इस गठबंधन की सरकार के ज्यादा दिन चलने की उम्मीद नहीं है। जिस तरह से अग्रेसिवली वो 15 दिनों में बिजली देने का, पानी देने का और तमाम चीजों का, जल लोकपाल देने का वायदा कर रहे हैं, ऐसे ही 15 दिन में वो ये वादा करें कि जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया उसके खिलाफ भी 15 दिन में ही कार्रवाई करेंगे, तो शायद ये 15 दिन का एक इतिहास बन जाएगा सरकार का। क्योंकि जिस दिन वो शीला दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे, जिस दिन शीला दीक्षित के खिलाफ आयोग बनाएंगे और कांग्रेस के जो 15 साल के कुशासन के बारे में जब वो कार्रवाई करेंगे तो उसी दिन सिंहासन से जाएंगे। प्रश्न है केजरीवाल सरकार किमान दिन जिकिब। ब्यूरो रिपोर्ट NDTV।